गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड. टुडे आई एम विद यू विद द टॉपिक डिटर्मिनर्स. What are determiners? Determiners are words which act like adjectives. Determiners ऐसे words होते हैं which acts like adjectives, जो विशेषण की तरह काम करते हैं, and placed before noun, noun से पहले लगाए जाते हैं, to determine their meaning, ताकि उन noun का जो क्या meaning निकलता है, to fix their meaning. So these are called determiners. Determiners are words which act like adjectives and placed before noun to determine their meaning. So I hope you understood the definition of determiners. Let us understand it through example. First example I have written, he is an engineer. So he is an engineer. Engineer is a noun here. Engineer is a noun. So before noun, what is coming? An article it is. So this is the determiners, which is determining fixed meaning of a engineer. He is an engineer. हम a यहाँ use नहीं कर सकते because engineer is starting from a vowel sound. Next is, some boys have appeared in the test. So I have underlined determiners. Some boys. So boys is a noun here, plural noun, and before noun we have used adjective. Some boys have appeared in the test. कुछ लड़के जो हैं वो टेस्ट में अपीयर हुए हैं. So which boys? कौन से boys? How many boys? Some boys. तो ये आंसर किसका दे रहा है? How many? This is giving the answer of how many boys? Some boys have appeared in the test. Next is, neither of the boys made a noise. अब neither जो है वो भी एक determiner है. Neither of the boys, लड़कों में से कोई भी नहीं, मेड नॉइज, किसी ने भी शोर नहीं किया. Who didn't make noise? Neither of the boys, किसी ने भी शोर नहीं किया. तो neither is also a determiner. Next, last example is, he has a lot of knowledge of mobiles. तो उसे मोबाइल्स के बारे में काफ़ी नॉलेज है. कितनी नॉलेज है? A lot of knowledge. तो a lot of is also determiners. सो डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनर्स जो हैं वो आप सेंटेंसेस में पढ़ते रहते हैं, बट इन डिटेल नाउ वी शैल स्टडी. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट्स डेफिनेशन एंड थ्रू एग्जांपल. नाउ लेट अस सी इट्स पार्ट्स. ये कितने तरह के होते हैं? लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स इट्स टाइप्स. अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें डिटर्मिनर्स की, तो डिटर्मिनर्स में सबसे पहली टाइप आती है आर्टिकल्स की, जो बहुत ही प्राइमरी क्लासेस के अंदर पढ़ाई जाती है आपको, और इसका यूज़ बहुत ही आसान है. आर्टिकल्स में क्या क्या रूल्स होते हैं? ए, एन एंड द. जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, तो ही इज़ एन इंजीनियर, तो उसमें मैंने एन का यूज़ किया था. ए, एन और द का यूज़ इट्स वेरी इजी. द मिडिल क्लास 8th 9th 10th ऑल्सो यू हैव रेड. तो ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं बताऊँगा मैं. ए और एन का यूज़ जो है, जहाँ पर वोवल साउंड होता है, vowel sound, where vowel sound is there we use an, and the we use for the definite objects, where definite objects there, these both are indefinite. ये दोनों जो हैं आर्टिकल्स indefinite हैं, और the article is a definite article. जैसे अगर मैं बात करूं सुपरलेटिव डिग्री में, जैसे he is the best boy, एग्जाम्पल दें, he is the बेस्ट बॉय, ये द आ गया इसमें. ही इज द बेस्ट, तो उसमें द के आगे जो है वो बेस्ट आ गया. कौन सा लड़का है? बेस्ट बॉय है. ही इज द बेस्ट बॉय. क्लियर. नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे. हमारा जो आर्टिकल्स की टाइप्स है, पोजेसिव. द के काफ़ी यूज़ हैं, जो आप इसके रूल पढ़ सकते हैं. द आर्टिकल्स के काफ़ी यूज़ हैं, जैसे कि डायरेक्शंस के नेम हैं, द थिंग्स विच आर वन, द सन, द अर्थ, द मून. न्यूज़पेपर नेम्स, द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स. जितने भी आपकी स्क्रिप्चर्स हैं, आपकी जो बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, द गीता, द कुरान, द बाइबल. ओके. माउंटेन्स के जो हमारे नाम हैं, द हिमालयाज,
Okay, so in this way so many uses are there, already you know about the rules. Next is हमारा possessive which shows your possession, the things which is in your possession, जो आपके पास है, it shows ownership, ये ownership को show करती है. Let us see which are the possessive determiners: my, our, his, her, your, their, its, etc. It's very simple, common, we use these words in our daily routine sentences. For example, board की बात करूँ, this is my board, this is my marker, or you are my students. तो this is their house, ये उनका घर है. तो these are called possessive determiners. Next our topic is type is demonstrative. Third type I am discussing, demonstrative. Demonstrative which shows the things. For example, this, these, that, those. इनका यूजेस आप प्राइमरी क्लासेस में आपने पढ़ा है. दिस और दैट ये दोनों ही हम यूज करते हैं सिंगुलर थिंग्स के लिए. we use for singular things, but for near objects, which are near objects, this we use for near objects. And next is these and those. these those में क्या होता है, ये हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं. अभी मैं आपको नियर और फार डिस्टेंस का रूल भी समझाता हूँ मैं. These and those we use for plural things, उनको डिनोट करने के लिए, plural things को डिनोट करने के लिए जो है हम these और those का यूज करते हैं, plural. और ये है हमारा सिंगुलर. अब इसमें आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि this और that कहाँ लगाना है, these और those कहाँ लगाना है. तो मैं इसमें बता रहा था आपका जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं, द ऑब्जेक्ट्स विच आर नियर. अगर आपके पास कुछ किताबें पढ़ी हैं, तो एक किताब है तो आप कह सकते हैं दिस इज ए बुक. जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो दिस इज ए मार्कर, दिस इज ए मार्कर बिकॉज दिस इज वेरी नियर टू मी. तो मैंने सिंगुलर के लिए क्या यूज कर दिया, दिस. और यही मार्कर अगर दूर होता तो दैट इज ए मार्कर. तो उसमें डिस्टेंट का रूल होता है, डिस्टेंट. जो ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टेंट, जो दूर पे हैं, उन्हें हम क्या यूज करेंगे, दैट. सिमिलरली दीज को हम कहाँ यूज करेंगे, नियर के लिए. दिस और दीज ये किन के लिए यूज हो गए, नियर के लिए. एंड दैट और दोज किसके लिए यूज हो गए, डिस्टेंट के लिए. प्लीज कीप दिस इन योर माइंड. दिस, दीज वी यूज फॉर नियर, दैट एंड दोज वी यूज फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट है हमारा फोर्थ टाइप, इनडेफिनिट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट इज इनडेफिनिट. इनडेफिनिट डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं, फोर्थ टाइप आई एम डिस्कसिंग विद यू, इनडेफिनिट. इनडेफिनिट में आ जाएंगे आपके सम, एनी, जिनके बारे में आप डेफिनेट श्योर नहीं हो ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं. मच, मैनी, फ्यू, लिटल, एट्सेट्रा. तो इसके बारे में, जिसके बारे में आप श्योर नहीं हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इनडेफिनेट डिटर्मिनर्स. वेरी कॉमन ये वर्ड्स आपके सेंटेंस में आप यूज़ करते रहते हैं. सम का यूज़ होता है जहाँ पर आप श्योर नहीं है. जैसे अभी एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, सम बॉयज हैव अपीयर्ड इन द टेस्ट. एनी का जो यूज़ होता है, द यूज़ ऑफ एनी, एनी का जो यूज़ होगा वो एनी के यूज़ को हम यूज़ करेंगे जहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम पूछ रहे हैं या फिर कोई नेगेटिव वर्ड सेंटेंस हम पूछ रहे हैं. जैसे डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, जब आप क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो उसमें डू यू हैव सम इंफॉर्मेशन रॉन्ग हो जाएगा. डू यू हैव एनी नंबर, एनी कॉन्टैक्ट, आप क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो एनी का यूज़ होगा. एनी के अंदर में नोट जहाँ नेगेटिव होगा तो वहाँ एनी का यूज़ होता है. जैसे हमने क्वेश्चन पूछा डू यू हैव एनी पेन, क्या तुम्हारे पास कोई पेन है, तो आगे से आई डोंट हैव एनी पेन. यू कांट से आई डोंट हैव सम पेन. आप ये नहीं कह सकते कि आई डोंट हैव सम पेन. आप क्या कह सकते हैं, आई डोंट हैव एनी पेन, क्योंकि वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया. सिमिलरली
आगे आप देखें मच और मैनी। मच और मैनी में क्या डिफरेंस होता है? मैनी जो है वो काउंटेबल थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। मैनी इज यूज फॉर काउंटेबल। मैनी को हम यूज करते हैं काउंटेबल के लिए, और मच को यूज करते हैं विच इज नॉट काउंटेबल, अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए। जैसे ही हैज मच नॉलेज, उसे काफ़ी नॉलेज है, टू मच नॉलेज। ओके, और मैनी में क्या आ जाएगा? ही हैज़ परचेज्ड सो मैनी बुक्स, काफ़ी किताबें उसने खरीदी हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। फ्यू एंड लिटिल। फ्यू और लिटिल दोनों का मीनिंग ही कम होता है। अगर हम मीनिंग देखें तो दोनों का ही मीनिंग कम होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर? फ्यू हम यूज़ करते हैं काउंटेबल थिंग्स के लिए, जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे देयर वर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास। क्लास में कुछ एक लड़के थे, ए फ्यू, तो लड़कों को तो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। लिटिल, देयर इज ए लिटिल वाटर इन द जग, ये आपको शो करेगा क्वांटिटी को। लिटिल शो करेगा क्वांटिटी को, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते बट मेजर कर सकते हैं। तो आपकी बुक्स में रूल दिए हुए हैं, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। नेक्स्ट है हमारा सम अदर। कुछ एक और भी डिटर्मिनर्स हैं हमारे पास। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ऑल, नो, these are common determiners. All of you are aware with the use of these determiners. Each और every जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। आइदर का एग्जाम्पल, नाइदर का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया था, दोनों केस में हो सकता है। आइदर रोड्स वर सेफ, मतलब दोनों ही सड़कें सेफ थी। नाइदर ऑफ द बॉयज पार्टिसिपेटेड इन द गेम, किसी भी लड़के ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ऑल का तो यूज़ आपको पता ही है, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। नो भी यूज़ आप कर लेते हैं। तो दीज वर सम टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। बहुत आसान टॉपिक है, इनको कर पाना। अब नाउ क्वेश्चन राइजेस कि ये हमें पेपर में किस तरीके से आता है, तो इसका पेपर में आने का स्टाइल क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके गैप फिलिंग फॉर्म में आएगा। एक आपको पैरा दिया होगा, उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, आपने वो सुटेबल डिटर्मिनर लगाकर भरने होते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड more through one example according to exam point of view. तो आइए let us see how to do it in exam. एग्जाम में इसको आपने कैसे करना है, ये आपके सामने एक एक्सरसाइज है, मैंने आपके सामने दिया है एक पैराग्राफ। फिल इन द ब्लैंक्स, डिटर्मिनर्स को आपने फिल करना है। कोई इसमें आपने देखा ऑप्शन नहीं दिए हुए इसके अंदर। यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है, एंड अकॉर्डिंगली you have to think which determiners will be suitable in the given blanks. So let us start the passage. My parents have given me separate room in dash home. देखिए इसमें कौन सा आएगा? My parents have given me, मेरे पेरेंट्स ने दिया है क्या? सेपरेट रूम, एक कमरा। तो क्या इसके अंदर आएगा? ए। My parents have given me a सेपरेट रूम। आप एन नहीं लगा सकते क्योंकि सेपरेट एस से स्टार्ट हो रहा है, वोवल साउंड नहीं है। ए सेपरेट रूम इन, तो यहाँ आप पॉजेसिव लगा सकते हैं, इन माई होम। माई पेरेंट्स हैव गिवन मी अ सेपरेट रूम इन माई होम। नेक्स्ट आप देखें, आई क्लीन एंड डस्ट रूम वंस इन अ वीक। आई क्लीन एंड डस्ट, मैं उस रूम को साफ करता हूँ। कौन सा रूम? माई रूम। विच रूम? I clean and dust my room once in a week. Once in a week. Yeah, you know very well. Once in a week. I have a strong desire. Strong adjective है। Stronger होता तो कुछ भी नहीं आना था, और strongest होता तो द आना था। I have a strong desire to be architect. तो architect is a noun, but starting from वोवल साउंड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एन आर्किटेक्ट। आई हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी एन आर्किटेक्ट एंड वर्क विद वन ऑफ बेस्ट कंस्ट्रक्शन, वन ऑफ बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन इंडिया। तो बेस्ट इज ए सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट इज ए सुपरलेटिव डिग्री। तो इन दिस केस यू विल यूज द आर्टिकल, वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन India. I gave you example also. He is the best boy.
तो जब भी आपकी एक सुपरलेटिव डिग्री आती है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, 3 तरह की डिग्री होती हैं आपकी, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव। शायद इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट होता है, गुड पॉजिटिव डिग्री है, ओके। कंपैरेटिव में बेटर हो गया, और सुपरलेटिव में क्या हो गया आपका, सुपरलेटिव में आपका हो गया बेस्ट, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू सी हाउ डिटर्मिनर्स आर सो सिंपल। कितना आसान है डिटर्मिनर्स को कर पाना, बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, और आपके सामने अभी एक्सरसाइज भी करके दिखाई है, सो दैट यू मे नॉट फेस प्रॉब्लम इन कंप्लीटिंग और इन चूजिंग द राइट ऑप्शंस। So I hope you students have understood the determinants topics. Even then if you face any problem, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो you can drop me in the comment box. आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। Thank you, have a nice day.